Prabhuji, I think my phone is my biggest weakness. What? Can you repeat it? I think my phone is my biggest weakness. Okay, thank you. Phone. Tanisha ji. I have also the same answer, my phone. Okay, thank you so much. Two same answers. Now, Suhana Sikaria. Currently, my best friend moved to different city, so I'm being distracted from my studies. So to overcome it, I like to make bond with my other friends. Ah, this is really cute. Thank you so much, Suhana ji. Very nice answer. Aisha Paul. Hare Krishna Prabhuji. Prabhuji, phone and social media. ठीक है, thank you. सौम्य कुमार. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. प्रभु जी, फ्रेंड्स सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन. Friends, okay. Wow. ah, ठीक है. We'll have to pick up the right ones then. Shaurya, आप बताइए. हरे कृष्णा प्रभु जी फोन में गेम खेलना वो सब डिस्ट्रैक्शन है. ठीक है, गेम्स खेलना. दिशा शर्मा. प्रभु जी फोन तो है यार, सेकंड मेरी नींद. Sleep. Okay, now a unique answer. Sleep. ठीक है, thank you. ईशानवी अग्रवाल. हरे कृष्णा प्रभु जी फोन. ठीक है. Now we have 5-6 phones, so no phones. I need new answers. Okay. आयुष जी, आप बताइए. हरे कृष्णा प्रभु जी मेरा फोन है और फोन फ्रेंड्स. है, फ्रेंड्स भी है. ओके, ठीक है. बट देन अगेन नो फोन्स. ठीक है ना, अभी कोई फोन नहीं बोलेगा. फ्रेंड्स. नाउ लेट मी सी अगर कोई बचा है. आई गेस ऑलमोस्ट एवरीवन इज आंसर्ड. पूर्वी अग्रवाल, आप बताइए. प्रभु जी रील्स. ठीक है, थैंक यू. अंशवी जी, कान्हा जी, आप लोग बताइए. हरे कृष्णा प्रभु जी. कृष्णा. प्रभु जी मेरा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन मेरा ओवर थिंकिंग है. ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर. कान्हा जी. प्रभु जी मेरे फ्रेंड्स. ठीक है. अरे बाप रे, ये क्या हो गया यार, फ्रेंड्स ही फ्रेंड्स सुनने को मिल रहा है. ठीक है, वेरोनिका, आप बताइए. Okay, maybe she's outside. Kriti Kashyap. Hare Krishna Prabhu ji. Hare Krishna. My biggest distraction is, I procrastinate a lot and I overthink a lot. And while doing it, I waste a lot of my time. So, yeah. ठीक है. Procrastination, overthinking. Thank you. Another unique answers. So, जितने भी लोगों का videos on था, I guess सबसे answers ले लिया मैंने. Thank you so much for your time. All right. Okay. Right. So let us continue with the story we were discussing. But before I start today, I want to tell you that I had promised you when we had the introductory class, when we ended Dashaftar and started Mahabharat story wala part, I had told you that it will be of around 10 sessions. And today is the 5th session. Okay. But if you notice, for the ones who have been here or who saw the recordings till now, the pace of the class was super slow. Okay. That is because today we will complete actually today's class number 5 out of the 10 classes. और आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे 50% ऑफ द भगवत महाभारत. ठीक है. क्यों, क्या होगा मैं आपको बताऊंगा. ठीक है. अब तक का पेस बहुत स्लो था बिकॉज आई वांटेड टू बिल्ड अ फाउंडेशन. ठीक है. और क्योंकि वो पार्ट हम लोग भूल भी जाते हैं बाय द एंड कम्स, क्योंकि एंड में वो वार वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेबोरेट है, वो याद रहता है. ठीक है. सो टुडे द रिविजन व्हिच आई एम डूइंग और द न्यू पार्ट व्हिच आई एम स्टार्टिंग, इट विल बी द लास्ट टाइम आई एम डिस्कसिंग दिस. सो आई एम ग्लैड कि आप लोग अभी है, और अगर आपके कोई फ्रेंड्स नहीं भी है तो वो हमारा बाद में रिकॉर्डिंग देख सकते. ठीक है. So, starting with that, as we started the first session, okay, we discussed that Mahabharat is basically, in a simple word, in one word, a war. Okay. Now that war was between whom? We get to know these things from the Vedic scriptures we have. Okay, na? The war was between two parties. एक तरफ थे 100 brothers of the Kauravas. ठीक है. और दूसरे तरफ थे the 5 brothers of the Pandavas. ठीक है, पांडु के बेटे और धृतराष्ट्र के बेटे के बीच में लड़ाई थी. Of course they had other allies also, but the main party was these two. ठीक है. और इस चीज के वजह से, इस सर्कमस्टेंस के वजह से फाइनली हमारा जब एंडिंग होगा नंबर 10th वाले क्लास में, we will realize we got the greatest gift like humanity, this human civilization could get in the form of knowledge, which was the essence of Vedic scriptures, the Bhagavad Gita.
जो हमारे महाभारत स्टोरी के मेन प्रोटैगनिस्ट को, शांतनु इज जस्ट द बिगिनिंग, वो आज खत्म भी हो जाएगा, मेन प्रोटैगनिस्ट अर्जुन को मिलता है लास्ट में उनके कजिन भाई, ठीक है, या फिर उनके फ्रेंड कृष्ण से। ऑल राइट, ठीक है। सो वी हैड बीन डिस्कसिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ भगवत गीता इन द लास्ट फ्यू सेशंस में। आपको हर बार बिफोर एंडिंग द क्लास किसी फेमस आदमी का कोट देता था कि व्हाई दे फेल्ट दैट भगवत गीता इज अ नीड फॉर अस, ठीक है, और देयर सक्सेस का कारण। So now, without wasting any more time, let us go back to 5,000 years ago in northern Uttar Pradesh, where we had the, city of, in the Kuru dynasty, we had the city of Hastinapur, ठीक है। तो हस्तिनापुर के किंगडम में we had seen, हमारा स्टोरी शुरू होता है this king in front of you, King Shantanu से, ठीक है। Now, the chapter 1 we had discussed was the mysterious woman. One day, King Shantanu was, going hunting near the Ganga river, okay? And he found this beautiful lady there, very beautiful lady, and he fell for her, right? Okay? He put forward his desires to marry her, okay? And when he did that, this girl came with a condition, okay? This girl first told me, "You don't even know who I am." So Shantanu ji ne bola, "I don't care about that. I don't really care about who you are or your identity because I am the king, okay? No one can really be superior to me around this place, right?" So the female there had one second condition, और उन्होंने क्या बोला कि if you want to marry me, I have a condition कि जो भी मैं करूंगा, you will not interrupt me, ठीक है। और किंग इसको मान गए, and then they were happily married after that, ठीक है। After the marriage, what happened कि उनको एक बच्चा हुआ, और जैसा कि अब आप सबको अच्छे से ये चीज मन में बैठ गया है, what she did is that when the first kid was born, she took her out of the palace to the river where they met, और उस बच्चे को उसमें बहा दिया, a tragic death by her own mother, drowned to death in the first few hours of being born itself. और ये चीज सिर्फ एक बार नहीं, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार हुआ, 7 times all the kids which King Shantanu bore through this girl called Ganga were drowned to death. And this thing used to eat him a lot, क्योंकि उनका फ्यूचर उत्तराधिकारी नहीं मिल रहा है, उनके बाद कौन राजा बनेगा, प्लस कौन सा पिता अपने बेटे को इस तरह से 7 बार मरता हुआ देख सकता है, वो भी अपनी ही माँ के द्वारा, and he can't even ask her कि why are you doing this, ठीक है। He was in a very helpless situation, but because he was entangled with the so called love for that female, ठीक है, he never bothered to ask. But one day he decided that enough is enough, I am not going to bear this anymore. Whatever mistake I've done, I'm a king. I need to focus on my duty now. I have to focus on who will be the next inheritance to my kingdom. तो जब उनका 8वां बच्चा हुआ, 7 बच्चा तो मर गया गंगा से, 8वां बच्चा जब हुआ तो इस बार उन्होंने उनको टोका, ठीक है, that I will not allow you to kill him, ठीक है, I can't stop, I can't help it, ठीक है, you have to stop now, I don't care अब क्या होने वाला। And then she gave her identity कि I am Mother Ganga, I am goddess Ganga herself, ठीक है, जो गंगा नदी के पास उनको मिली थी, वो ही गंगा देवी है ये स्वयं, और इन्होंने इस ब्यूटीफुल लेडी का एक रूप लिया था to seduce the king and then have a marriage। फिर उसके पीछे एक बैक स्टोरी है जो इतना रेलिवेंट नहीं है स्टोरी से, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, बट नाउ इट्स नॉट रेलिवेंट टू आवर रिविजन, सो मैं नहीं बोलूंगा। बट जो भी हुआ, 7 बच्चे मर गए, इट वाज अ पार्ट ऑफ अदर प्लान। दिस वाज द 8th किड, ठीक है, हु सर्वाइव्ड बिकॉज ऑफ द इंटरवेंशन। और इसका नाम क्या था, नाम नॉट द अदर नेम, पहले इसका नाम क्या था, कौन बताएगा, हैंड्स रेज कर, हैंड्स रेज करके, ठीक है, सौम्य कुमार आप बताइए। प्रभु जी देवव्रत। थैंक यू स्वामी जी, इनका नाम था देवव्रत, द 8वां बच्चा जो बच गया, ठीक है। देवव्रत जो थे, दिस वाज द ओनली किड हु सर्वाइव आउट ऑफ हिज मैरिज विद गंगा, और गंगा तो अब हमारी स्टोरी से चली गई, ठीक है, शी वेंट अवे आफ्टर एक्सप्लेनिंग व्हाट हैपेंड। She was not a human, you need to remember this, ठीक है ना, she was not a human, she was just in a disguise. Now, अब इस शांतनु राजा के पास कोई वाइफ तो नहीं है, लेकिन एक बेटा जरूर है, और ये देवव्रत जो है, ये he was not an ordinary child, ठीक है ना, he had extraordinary powers, he was very pious, he was the so called perfect man you could imagine, ठीक है। This is the picture, it's a very famous painting of Ganga handing the 8th son Devavrat to King Shantanu.
King Shantanu was happy that he has a son, but he was very very sad when Ganga left her. ठीक है, because जब गंगा उनके साथ थे all these years of marriage, वो सिर्फ उनके साथ टाइम बिताते थे, अपने ड्यूटीज के प्रति उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, सब सबऑर्डिनेट मिनिस्टर्स को संभालने दे दिया गया था. But then time passed and these things happened. और फिर क्या हुआ, वो है, उनके बेटे हैं, सब चल रहा है. पूरा जो प्रजा है ना, the kingdom was very happy to have a prince like Devavrat because they knew हमारा फ्यूचर किंग जो है ना बहुत ही सही होने वाला है. तो अगर किंग अच्छा है तो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होगा, तो हम लोग का जितना भी लोग है, सिटीजन्स है, इस किंगडम में रहने वाले सब खुश होंगे. ठीक है, so they were very excited and optimistic looking ahead of the future. But then one incident changed again everything. King Shantanu met again in that same area, that Ganga river के पास, he met another lady. ठीक है, and उनका नाम जो है, it was सत्यवती. ठीक है, so he met Satyavati and again just like Ganga's case he wanted to marry her. ठीक है, now there was one backstory I gave you about Satyavati. ठीक है, सत्यवती जो है, उनका एक बेटा था बिफोर दिस मीटिंग. ठीक है, बिफोर दिस इंट्रोडक्शन उनका एक बेटा था. वो बेटे थे व्यासदेव जी. टू योर लेफ्ट, गणेश जी के लेफ्ट में जो है व्यासदेव जी. व्यासदेव जी इज नॉट एन random character for our story because he is the writer of all these Vedic scriptures we discussed today, from the Bhagavad Gita to the Mahabharata to the Vedas. ठीक है, and basically I have told you this earlier, 4 Vedas हैं. The whole Vedic scriptures, the whole Vedic knowledge which you talk about every day, it's like categorized into 4 different Vedas. But then it was Ved Vyas ji who decided I should write a Veda number 5 in a simplified version, in a summarized version, ताकि बहुत सारे लोगों को कलयुग में समझ में नहीं आएगा. बच्चे, औरतें, या फिर जो बहुत लोअर कैटेगरी के सिविलाइज्ड लोग नहीं हैं, उनके लिए महाभारत का स्टोरी लिखा गया था. ठीक है, सो एज बच्चे हमारे और आपके लिए लिखा गया, वी कैन अंडरस्टैंड इट क्लियरली एज वी कैन सी नाउ. वेदव्यास जी का वेदव्यास जी के मम्मी थे ये सत्यवती जी. ठीक है, बिफोर दिस मैरिज ऑफ किंग विद किंग शांतनु. और इसका बैक स्टोरी क्या था वो मैंने आपको पिछली बार बताया, यू कैन चेक इट आउट ऑन द वीडियो. ठीक है, नॉट वेरी रेलिवेंट टू आवर स्टोरी. नाउ व्हाट हैपेंड, अब ये तो एक ब्राह्मण थे वेदव्यास जी, ये अपना निवारण कर रहे थे जिंदगी का खुद. ही वाज नॉट विद हिज मदर. ठीक है, तो सत्यवती वाज अडॉप्टेड व्हेन शी वाज यंग, शी वाज अडॉप्टेड बाय अ फिशरमैन. ठीक है, तो आप मान लीजिए फिशरमैन की बेटी थी सत्यवती. तो जब ये किंग शांतनु हमारे उस दिन मिले वापस किंग सत्यवती जी से, तो she wanted to marry her, he proposed her, but then जो उनके पापा है मछुआरे जो हैं सत्यवती के, he told to King Shantanu कि I have a condition. Remember we were talking about इनके बारे में कि पूरा किंगडम खुश था जब ये राजा बनने वाले हैं फ्यूचर में. बट देन ये जो मछुआरा था सत्यवती का पापा, उन्होंने किंग शांतनु को ये कंडीशन दिया कि इफ यू वांट टू मैरी माय डॉटर फाइन, बट देन यू हैव टू प्रॉमिस मी कि सत्यवती से जो बेटा होगा वो राजा बनेगा, नॉट देवव्रत. ठीक है, ये कंडीशन रखा गया. एंड ऑल्दो पहले भी उनके साथ ऐसा हो चुका है सिमिलर इंसिडेंट, ही डिड नॉट टेक द लेसन. ठीक है, गलती करने से लेसन एक बार में ले लेना चाहिए, उस गलती को रिपीट नहीं करनी चाहिए. ठीक है, नए नए गलती करना इज ओके. ठीक है, सो देन ओके, ही एक्सेप्टेड द कंडीशन. एंड at first I told you this, he did not want to accept, but ये जो है ना, this is the day when Devavrata became Bhishma. Why and how? क्योंकि जब देवव्रत को पता चला कि उनके पापा किसी से शादी करना चाहते हैं, बट देन ये कंडीशन की वजह से नहीं कर पा रहे, बिकॉज देवव्रत वाज अ ग्रेट, ही वाज गोइंग टू बी अ ग्रेट किंग. सो व्हाट ही डिड, ही टुक अ वाव. ठीक है, एक प्रण लिया उन्होंने, एक प्रॉमिस किया खुद को उस मछुआरे के पास जाकर, आई विल नेवर मैरी and I will never desire to become the king, so I will not have any sons also who will fight for the kingdom later. तो कभी शादी नहीं करेंगे और कभी राजा नहीं बनेंगे. और इसलिए उस दिन देवव्रत से हटकर उनका नाम हो गया भीष्म, बिकॉज भीष्म का मीनिंग होता है एक्सट्रीमली सीवियर. ऐसा सैक्रिफाइस उन्होंने दिया था. ठीक है, फाइन. तो अब क्या हुआ हमारे स्टोरी में, किंग शांतनु की शादी हो गई सत्यवती से. ठीक है, और उनका किंग शांतनु का पहले एक बेटा था देवव्रत. ठीक है, अब ये जो शादी हुई है सेकंड मैरिज ऑफ शांतनु, इस न्यू मैरिज से उनको हुआ 2 बेटा, चित्रंगदा और विचित्र वीर्य. ठीक है, जो ये चित्रंगदा है टू योर लेफ्ट, ही डाइड वेरी शॉर्टली, किसी बैटल में उनका डेथ हो गया. सो ही इज आउट ऑफ द स्टोरी नाउ. ये बचे विचित्र वीर्य. ठीक है, हमारे स्टोरी में. ओ बाय द वे, किंग शांतनु भी अब तक मर गए थे. ठीक है ना, ही ऑल्सो पास्ड अवे फ्रॉम ओल्ड एज, तो वो भी चला गया, उनका ये बेटा भी चला गया चित्रंगदा, बस विचित्र वीर्य बचा. ठीक है,
अब हमारे स्टोरी में है सत्यवती क्वीन, विचित्रवीर्य और देवव्रत, ठीक है। नाउ देवव्रत जो है, सॉरी, ये विचित्रवीर्य जो है ये मर गए, ड्यू टू ओल्ड एज ये मर गए। बट प्रॉब्लम क्या हुआ, जब ये मरे ना, तो इनकी जो वाइफ थी, इनकी 2 वाइफ थी, अंबिका और अंबालिका, उनके पास कोई बेटा नहीं था। ही डिड नॉट पास एनी फ्यूचर जनरेशन बिफोर डाइंग। नाउ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस क्राइसिस व्हिच हैपेंड, ठीक है ना। क्राइसिस क्या हुआ, अभी हमारी स्टोरी में इस पॉइंट पे कौन है, हमारी स्टोरी में सबसे सीनियर है सत्यवती, वो मछुआरे की बेटी जो रानी बन गई है, सत्यवती। सत्यवती का 2 बहू है, ठीक है, अंबिका और अंबालिका, अंबिका अंबालिका, क्योंकि दोनों बेटा मर गया और उसका पति भी मर गया, तो 2 बहू बचा है। और एक हमारे साइड में कैरेक्टर है देवव्रत जी, और देवव्रत वी ऑल नो ही विल नॉट बी द किंग, नाइदर ही हैज एनी सन्स टू बिकम द किंग, सो देयर इज नो मेल पर्सन टू बिकम द किंग ऑफ दिस किंगडम, एंड दैट वाज अ क्राइसिस, ठीक है। देयर किंगडम वाज इन अ थ्रेट, लूमिंग थ्रेट। अब इसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने बुलाया अपने बेटे को, मैंने आपको बताया था ना, उनका बेटा था एक पहले का, व्यास देव जी, जो हमारे राइटर है महाभारत के, उनको बुलाया, प्लीज सॉल्व द प्रॉब्लम, इट्स ओनली मी, माय 2 डॉटर इन लॉ एंड देवव्रत, नाउ वी 4 एंड नो वन ऑफ अस कैन बिकम द किंग, सो वी नीड अ किंग, व्हाट टू डू। तो वेदव्यास जी तो एक क्षत्रिय नहीं है, ब्राह्मण है, सो वो भी राजा नहीं बन सकते। उन्होंने क्या किया, वेदव्यास जी वाज अ ग्रेट ब्राह्मण, ठीक है, बहुत बड़े संत महात्मा थे, तो उन्होंने सत्यवती की जो 2 बहू थी, अंबिका एंड अंबालिका, उन दोनों को ब्लेसिंग्स दिया टू हैव अ चाइल्ड, लाइक उनके ब्लेसिंग से ही एक चाइल्ड उनको गिफ्ट एज अ बून मिल सकता है, ठीक है, नो मैरिज नीडेड फॉर दैट। बट देयर वाज वन साइड इफेक्ट, वन स्मॉल प्रॉब्लम हियर। जब अंबिका गई थी वेदव्यास जी के पास आशीर्वाद लेने, अंबिका वेदव्यास जी को देख के बहुत डर गई, बिकॉज ही वाज नॉट वेरी गुड लुकिंग, ही वाज सॉर्ट ऑफ लिटिल बिट अगली फॉर हर, बिकॉज उनका तो ये लोग पूरा बचपन से राजकुमारी थी, अब बड़ी होकर रानी बन गई है, तो इन्होंने बहुत रॉयल लाइफस्टाइल देखा था, लग्जरियस, ये सारी चीजें इन्होंने, पॉवर्टी या अगलीनेस, ये सब चीजें इन्होंने देखा ही नहीं था, सो दे वे शॉक्ड। तो अंबिका जी जो है लेफ्ट में, वो गई आशीर्वाद देने फॉर अ सन, बट शी वाज स्कैर्ड टू सी हिम, ठीक है, और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली डर के मारे। तो वेदव्यास जी ने उनको बेटा तो दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी मम्मी को प्रॉमिस किया था दैट आई विल ब्लेस देम, लेकिन बिकॉज शी ऑफेंडेड अ ब्राह्मण, प्रॉब्लम क्या हुआ, उनका बेटा अंधा निकला, ठीक है। और अंबिका जी के बाद जो राइट में है अंबालिका जी, वो जब वहां गए तो डर के मारे उनका चेहरा पीला हो गया, तो उनको क्या मिला, बेटा तो मिला, लेकिन जॉन्डिस रहेगा उसको, और उसका पूरा पेल कॉम्प्लेक्शन, एकदम येलोइश फेस रहेगा हर टाइम, ठीक है। ये 2 बच्चे हुए, लेकिन क्वीन सत्यवती आपके राइट में अब आ गई, क्वीन सत्यवती अब बूढ़ी हो गई है, ठीक है। शी वॉज नॉट हैप्पी, ऐसे 2 ये बच्चे हैं, दे आर नॉट कंप्लीटली हेल्थी, कैसे राजा बनेंगे। तो उन्होंने क्या किया, एक नौकरानी को, ठीक है, अच्छा से कपड़ा पहना के भेजा कि तुम भी मेरी एक बहू बन के जाओ और उनसे आशीर्वाद लो। तो नौकरानी थी वो, उनको पूरा रेस्पेक्ट था इनके लिए, उन्होंने सब टाइप का स्टोरीज देखा अपने लाइफ में, सारा तरीके के स्ट्रगल्स देखे, सो शी वॉज नॉट स्कैर्ड एट ऑल। तो उन्होंने जब आशीर्वाद मांगा, शी वॉज ब्लेस्ड विद अ परफेक्ट सन, टू योर लेफ्ट हियर, he was extremely, he was a genius and he was very powerful and he was very smart and at heart he was a very good person. I'll tell you how, okay, I have a proof for that, but first I need to know his name. Raise your hands, do you know the name of this person? I had discussed it last session. Anyone? Disha Sharma. Prabhuji, Vidur Mahatma. Vidur, right, thank you Disha ji. So we are talking about Vidur, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब हमारा क्राइसिस था कि अब कौन नेक्स्ट राजा बनेगा, तो हमको 3 बेटा मिल गया, नए लोग हमारे स्टोरी में, ठीक है। ये जो अंधा है यहाँ पे, अंधे वाले हैं धृतराष्ट्र, ये जो जॉन्डिस वाला है पीला रंग के, वो है पांडु, और एक नौकरानी से जो बेटा हुआ था परफेक्ट वन वाज विदुर, ठीक है। दिस मैन वाज अ जीनियस, आई विल टेल यू हाउ। नाउ विदुर जो है, ओके, विदुर वाज अ ब्रदर to Dhritarashtra. You can see on the left that sort of blind person is Dhritarashtra, and to your right the yellowish person is Pandu. Pandu और Dhritarashtra की तरह ये विदुर भी थे, विदुर was the brother, ठीक है, of these 2 people, क्योंकि फिर उसी एक ही टाइम पीरियड में वो 3 प्रोसेस जो थे आशीर्वाद लेने का, उनसे इनका जन्म हुआ है, ठीक है। और इनसे जो बच्चा हुआ था, धृतराष्ट्र से जो बेटे हुए थे कौरवस, और पांडु से जो बेटे हुए थे पांडवस, उनके अंकल, ठीक है, एज इन अ चाचा होते हैं ना, उनके अंकल लगते थे वो, ठीक है। तो विदुर वाज द पर्सन, नाउ आई एम गोइंग टू अ फ्यूचर पार्ट, ठीक है, थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट सीन आ गया अभी, आई एम गोइंग टू अ फ्यूचर पार्ट, आई जस्ट वांट टू गिव यू अ रेफरेंस
Vidur, apart from Lord Krishna, who was Arjuna's cousin, Vidur was the only person who went to Dhritarashtra to tell कि आपका बेटा जो कर रहा है ना, it will lead to a devastating crisis. एक बहुत बड़ा वार आएगा. He had predicted this very before then it happened. And he tried to warn his best. You have to stop your sons, otherwise everything will be very tragic now. बहुत peaceful चल रहा सब कुछ, but there will be a big war. But then when Dhritarashtra told to his son Duryodhan, the main villain of the story, ठीक है, that you need to be careful, your uncle is very concerned about you. He did not listen. He was too much egoistic and arrogant to listen, over ambitious and very jealous of the Pandavas. That's why that great war started. We'll learn about it in the future. This was what Vidur did. Okay? He was a genius. Okay, so Uncle Vidur, Dhritarashtra and Pandu. These are the three people new in our story. Okay? Of course, we have Satyavati, Ambika, Ambalika and Bhishma Pitama. अब जो क्या हुआ कि अब हमको एक राजा चाहिए ना, इसलिए तो इतना सारा कुछ हुआ, तीन लोग हुए. तो क्या हुआ, हमारा धृतराष्ट्र तो अंधा है. एक्चुअली एज वाइज वो सीनियर है, बट वो अंधा है, तो इसीलिए ही कैन नॉट बी द किंग ऑल्दो ही सीनियर इन एज. उनके जगह राजा बनाया गया पांडु को. ओके, बिफोर दैट धृतराष्ट्र की शादी हुई थी गंधारी से. ठीक है, गंधार किंगडम की थी गंधारी. शी वॉज अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस हु बिकेम अ क्वीन टू दिस किंगडम. But when she learned, now she was a very cultural and pious woman, you can get another good example. When she learned that my husband is blind, she had put a blindfold on her face and she never took it off till the end moments of her life. कभी वापस उन्होंने उस पट्टी को नहीं निकाला, just so that she can be there with her husband at an equal part. Now, you might not think that it's very practical for in this Kali Yuga, but that time was different. That times wives were extremely devoted to their husbands, like as if they are God. ठीक है, they used to serve them like that, and that was a duty also for wife in general. ठीक है, जैसे आप हम सब की मम्मी, आपके पापा या हम बच्चों का ध्यान रखते हैं ना, तो वैसे. So this was the good example of Gandhari you get to see. Although she was not blind, she chose to be like blind till the rest of her married life. तो ये जो कपल है धृतराष्ट्र गांधारी, इनसे इनको हुआ टोटल ऑफ 100 चिल्ड्रन. ठीक है, जिनको कौरवस बोलते हैं. कौरवस का मेन लीडर था दुर्योधन. ठीक है, sort of the most negative character of our story, you can say, the villain. Fine. Now we are talking about these three people. अब इनमें जो राइट में है पांडु. ठीक है, पांडु जो है, पांडु की 2 शादी हुई थी. You need to focus now. ठीक है, I am taking a new part. पांडु की शादी सबसे पहले हुई कुंती से. ठीक है, कुंती, और सेकेंड शादी हुई माद्री से. These 2 people. Okay, किसी का Okay. Yeah. So this was Kunti, number 1, and there was one thing you need to know about Kunti. Madri is not very important to our character, but Kunti is important. Why? There's one thing you need to know about her. जैसे हम अर्जुन की बात करें, अर्जुन की मम्मी है, पांडवस की मम्मी है कुंती. Before this marriage with पांडु, उनका एक और बेटा था. And it was not a marriage or anything like that, not any intercourse. She was blessed with a child from Surya Dev, मतलब the sun god. ठीक है, जो सूर्य देवता हैं, उन्होंने उनको blessing दिया था, कुछ बूंद था. Again, it's a different story, not relevant to our Mahabharat part, and not at all as children. So sun god had blessed her as a boon and gave her a son, but she was not married, and at that time the society could have judged her, and it could have been very wrong for her. ठीक है, as a princess. So what she had to do, she was forced to, उनको उन्होंने बहा दिया था एक नदी में. Not in the sense she was drowned to death. उनको एक अच्छे से बोट टाइप चीज में रखकर उनको बहा दिया गया था, और बाद में she ensured that किसी इंसान को मिल जाए वो बच्चा. ठीक है, not that he drowns to death or he, वो malnutrition से मर जाए इस जर्नी में. So she had to abandon the child, and his name was Karna. But Karna is nowhere in our story now. He will come later, and when he comes with a blow. ठीक है ना, he will be sort of a big rival to Arjun. ठीक है, and we'll see what happens with Karna. ठीक है, जैसे एकलव्य, कर्णा, ये लोग बहुत talented थे, but then they could never defeat Arjuna for various reasons. So Karna is a very important character. He will come in the future. You have to remember this name now. तो कुंती की एक बेटा पहले से ही था. ठीक है, and Karna was found by a weaver when he was floated away. He was found by a weaver, and एक मतलब a low class lifestyle में उनका जो है पालन पोषण हुआ था. Let's come back to the story. We have the 5 Pandavas. ठीक है, तो क्या हुआ ना, कुंती से पांडु और कुंती का जो मैरिज था, उससे 3 बेटे हुए, अर्जुन, युधिष्ठिर एंड भीम.
युधिष्ठिर वर द मोस्ट सीनियर, अर्जुन, युधिष्ठिर एंड भीम। और मैं बोला था ना माद्री है एक और सेकंड वाइफ, माद्री से उनको हुआ नकुल और सहदेव, ठीक है। सो पांडु हैड 5 sons फ्रॉम 2 wives, ठीक है, डन। द पांडवस, द 5 पांडवस। और इनके बीच में हमेशा से एक मतलब दुश्मनी रही थी, बट इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ द पांडवस, इट वाज बिकॉज ऑफ दुर्योधन फ्रॉम द कौरवस। ही वाज 24/7 jealous and envious of these 5 brothers because they were very pious, very virtuous, और सब लोगों को लगता था कि हाँ ये बहुत अच्छे लोग हैं, ठीक है। एंड दे वर सॉर्ट ऑफ द पीपल हु कुड बी द फ्यूचर किंग, बिकॉज ऐसे भी क्या है, राजा कौन है, धृतराष्ट्र इज नॉट द किंग, पांडु इज द किंग, पांडवस के पापा पांडु इज द किंग, सो दे माइट हैव बीन द फ्यूचर किंग्स। दिस यूज्ड टू ईट दुर्योधना, ठीक है, डे एंड नाइट ही यूज्ड टू थिंक अबाउट दिस, एंड दिस इज व्हाट अल्टीमेटली लेड टू दिस महाभारत वॉर। I have actually given you the 50% story only right now. This, now we understand, हमारे स्टोरी में पांडवस भी आ गए और कौरवस भी आ गए, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि क्या होता है इनके बीच में। नाउ दैट दे आर इन द सीन, दे हैव टेकन बर्थ, दे हैव टू जस्ट they have to learn warfare from the same teacher called द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, उनका स्टोरी तो डेफिनेटली नेक्स्ट सेशन में आपसे शेयर करूंगा। एंड दैट वाज द थिंग अबाउट दिस। Now, if you want to see this thing, this will clarify things a lot for you. Kuru dynasty में किंग शांतनु से हमारा स्टोरी शुरू हुआ। He had 2 wives, गंगा एंड सत्यवती। गंगा से एक ही बेटा हो पाया था, भीष्म देवव्रत। और सत्यवती की अगर हम बात करें, सत्यवती से पहले एक बेटा था व्यासदेव जी, हमने देख लिया था। और फिर बाद में हुआ चित्रंगदा और विचित्रवीर्य। चित्रंगदा मर गया तो उनको छोड़ो, विचित्रवीर्य भी मर गया, बट एक 2 वाइफ्स थी उनकी, अंबिका और अंबालिका। और अंबिका अंबालिका को ब्लेस किया गया व्यासदेव जी के द्वारा विथ सन्स कॉल्ड धृतराष्ट्र एंड पांडु, ठीक है। विदुर अभी इस चार्ट में नहीं है, बट ही इज देयर। धृतराष्ट्र और पांडु, धृतराष्ट्र की शादी हुई गंधारी से और उनसे उनको हुआ 100 बच्चे, ठीक है। पांडु की शादी हुई कुंती और माद्री से और उससे टोटल में हुए उनको 5 बेटे, ठीक है। एंड दैट्स द थिंग, आई मीन देयर आर मेनी अदर नेम्स राइट नाउ, बट आई जस्ट वांटेड टू फोकस ऑन द बेसिक पार्ट। There's not even a need also कि आपको सब कुछ एकदम अच्छे से डिटेल में समझना है, ठीक है। So it was a very short session, gladfully. Today I have completed the 50% part, ठीक है, half midpoint I have reached, and I know, I admit this, I was very slow, but then it was necessary, and this won't happen for the next 5 sessions, ठीक है, because we'll move at a fast pace. We have, honestly speaking, 100 pages to cover till now, so I'll go at like 20 pages per class type of pace. I would really be gladful if you come and attend us from the next 5 Sundays too, ठीक है। And then we'll complete this Mahabharat session again, ठीक है। तो जैसे कि हमने दशावतार किया था, that's it. So trivia time. I have some few small things to talk to you अभी भी, ठीक है। आपका मुझे 10-15 मिनट और चाहिए होगा, बट ये मीटिंग जो है ये अभी खत्म हो रहा है, इसका एक टाइम लिमिट है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अभी ये मीटिंग बंद होगा, आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स को खोलिए, उसमें एक नया लिंक आएगा, उससे ज्वाइन कीजिए, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। थैंक यू। अरे पर सत्यवती जी मिली, और वो एक मछुआरे की बेटी थी जिनका दूसरा नाम मत्स्यगंधा भी था। तो फिर से शांतनु जी ने वही गलती की और वो उनसे शादी करने के लिए उनको एक प्रपोजल दिया उन्होंने। पर जो मछुआरा था वो उन्होंने शांतनु जी से 2 मतलब प्रॉमिसेस मांगे कि पहला कि भीष्म पितामह यानी कि देवव्रत राजा नहीं बनेंगे, और सत्यवती से जो उनका पुत्र होगा वही राजा बनेगा। राइट। तो फिर शांतनु जी ने उनके दोनों प्रॉमिसेस को वापस से एग्री कर लिया, और फिर उनसे उनकी शादी हो गई और उनके 2 बेटे हुए फिर से, विचित्रवीर्य और चित्रांगदा। और जब शांतनु जी की डेथ हो गई तो सत्यवती जी की 2 बहुएं थी, अंबिका और अंबालिका। तो फिर कुछ ना कुछ कारण की वजह से विचित्रवीर्य और चित्रांगदा दोनों की डेथ हो गई थी। तो फिर राज्य पर ये एक प्रॉब्लम छाया हुआ था कि अब राजा कौन बनेगा, क्योंकि भीष्म पितामह यानी कि देवव्रत वो वचनबद्ध थे कि वो राजा नहीं बनेंगे, और अंबिका और अंबालिका दोनों के ही कोई पुत्र नहीं थे। तो फिर सत्यवती जी ने वेदव्यास जी को रिक्वेस्ट किया कि वरदान के तौर पर उनकी बहुओं को पुत्र हो जाए। तो फिर क्योंकि दोनों रानियां काफी
वेल ऑफ फैमिली से थी और बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में पली बड़ी थी, तो Right. फिर उन्हें थोड़ी भी मेसी चीजें देखने की आदत बिल्कुल भी नहीं थी। तो फिर वेद व्यास जी जो थे वो उतने गुड लुकिंग नहीं थे। तो जब वो दोनों अंदर गई, जब पहले अंबिका जी अंदर गई, तो आई थिंक अम्बालिका ठीक है, अंबिका या अंबिका, it's okay. अंबिका जी अंदर गई थी, तो फिर उन्होंने वेद व्यास जी को देखकर अपनी आंखें बंद कर ली। तो वेद व्यास जी ने उन्हें पुत्र होने का वरदान तो दिया, पर साथ में ये भी कहा कि उनका पुत्र अंधा होगा, जिनका जो धृतराष्ट्र के नाम से हम जिनको जानते हैं। ठीक फिर है। जब दूसरी रानी अंदर गई, यानी कि सत्यवती की दूसरी बहू अंबालिका, तो वो उन्हें देखकर येलो पड़ गई, एकदम पीली पड़ गई। तो फिर उन्होंने उनको भी वरदान दिया कि आपका जो पुत्र होगा वो जॉन्डिस से सफर करता रहेगा। तो फिर सत्यवती जी को लगा कि राजा प्योरली फिट एंड फाइन होना चाहिए, तो उन्होंने उनकी एक नौकरानी, एक दासी को एकदम अपनी रानी की तरह सजा के तीसरी रानी के रूप में अंदर भेजा। तो क्योंकि वो लाइफ के हर सफरिंग और स्ट्रगल से ऑलरेडी गुजरी हुई थी, और वो हर ऋषि मुनि की रेस्पेक्ट को जानती थी, तो उन्होंने उनकी रेस्पेक्ट करते हुए उनको जाते ही प्रणाम किया, और वेदव्यास जी ने उनको अच्छे पुत्र होने का वरदान दिया, जिनको हम विदुर महात्मा के नाम से जानते हैं। और वो बहुत ही ज्यादा समझदार थे। ऐसा माना जाता था कि अगर पूरे संसार के ज्ञान को एक तरफ रख दे और विदुर जी के ज्ञान को एक तरफ रख दे, तो विदुर जी के ज्ञान का पलड़ा ही भारी रहेगा। वो इतने ज्यादा जीनियस थे। तो फिर ये प्रॉब्लम सुलझ गई, और उनके जो 3 पुत्र थे, तो क्योंकि धृतराष्ट्र थे वो नेत्रहीन थे, राजा पांडु को बनाया गया। और धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी थी, वो मतलब कांदाहार बोल की जो जगह है वहां की राजकुमारी थी, और उनके ब्रदर थे शकुनी। तो जो गांधारी थी, क्योंकि वो बहुत ही पायस लेडी थी, उन्होंने और वो अपने हस्बैंड को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती थी, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर मेरे हस्बैंड अगर देख नहीं सकते हैं, तो फिर मुझे भी देखने का कोई अधिकार नहीं। इसलिए उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, जो कि पट्टी वो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ टाइम वो पट्टी कभी नहीं खोली, सिवाय एक बार, जो आगे महाभारत की स्टोरी में पता चलेगा। तो फिर पांडु की 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री। और जो कुंती थी उनसे 3 पुत्र हुए उनको, जिनका नाम था अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, जो कि देवताओं के वरदान थे एक तरह से। और उन 3 पुत्र से पहले भी वो जब उनकी शादी नहीं हुई थी, तो उनको एक पुत्र हुआ था जिनको हम सूर्य पुत्र कर्ण के नाम से जानते हैं। वो सूर्य भगवान का आशीर्वाद था। तो क्योंकि वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत महत्व देती थी, और वो अगर ताकि समाज उन पर उंगली ना उठाए, इसलिए उन्होंने मजबूरी के कारण कर्ण को उनको नदी में बहाना पड़ा। तो कर्ण जो है फिर बाद में आएंगे, आपने जैसा बोला अर्जुन के राइवल बनकर। तो फिर और माद्री से पांडु को 2 पुत्र हुए, और उनके नाम थे नकुल और सहदेव। श्योर, ठीक है। और हाँ प्रभु जी, मैं एक पॉइंट बोलना भूल गई। गांधारी के और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, जिनमें एल्डेस्ट जो थे वो दुर्योधन थे, और दुर्योधन और दुशासन मेन कैरेक्टर्स थे, और उनकी एक बहन थी दुशाला। ठीक है। और अगले साइड में थे पांडवस, द 5 ब्रदर्स, राइट? हाँ, ठीक है, ओके। Thank you so much. Now all of us let's clap for Disha Sharma and सुहाना सिकारिया जी, both of them. इतने अच्छे से उन्होंने समझाया। कभी मेरी तबीयत खराब होगी तो I have a substitute teacher for me now. Two teachers I guess. ठीक है? That's not a problem now. ठीक है ना? All right. कभी आप लोग बहुत ज्यादा बोर हो जाएंगे तो फिर 2 जन और है, ठीक है, एंटरटेन करने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ब्यूटिफुली saying everything out here. Now with this, thank you Disha ji and Suhana ji. We would like to end our session. Good luck for your day and your future. This was our last classes attendance, ठीक है? And after, for those who did not know this, जब हम लोग अपना attendance देते हैं, after that I always tell you कि हमारा सेशन खत्म होते ही, अभी जैसे नया मीटिंग का लिंक गया,
एक फॉर्म आता है आपके गूगल फॉर्म बोलकर, और लाइक कभी कभी उसमें अलग अलग क्वेश्चंस भी होते हैं, जैसे हमने अब से आइस ब्रेकर वाला चीज ऐड करना शुरू कर दिया, सो इट कैन बी सम 1 to न्यू थिंग्स एवरी टाइम, एंड इट्स माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन, ठीक है, जो भी लोग हमारा क्लास को अटेंड करने आते हैं, टू टेक 1 minute, just you gave me 1 hour for which I'm very grateful, just give me 1 additional minute to make it even more better for you and I both, ठीक है. So last time सुहाना जी, सौम्या, आयशा, वरुण जी, यश, Tanisha, Kritik Kashyap and Ekta Agarwal had filled the forms. Thank you so much for giving your feedback and your suggestions, ठीक है. And as I told you, it only takes it doesn't even take 1 minute, ठीक है, if you're good with your keyboard, ठीक है ना, which I think we all are now, ठीक है. इतना लोगों का फोन प्रॉब्लम है, तो चलो कुछ तो सीखा अच्छा फोन से भी, जल्दी टाइप ही कर लो. और if you did not know this, ठीक है, your secrets, your answers are safe with me, except for that icebreaker वाला thing. Yeah, if you have done something extraordinarily good, then of course आपका तारीफ तो करना ही चाहिए ना, तारीफ में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. So it's your secrets are safe for those who did not know this, जो किसी डर से नहीं भर रहे हैं फॉर्म. कभी आज तक मैंने किसी का कोई आंसर इतने सेशंस में, in 29 meetings I've never told anyone, ठीक है. So just like the Coca-Cola's formula, right, कि Coca-Cola कैसे बनता है, it's hidden in a safe vault in Atlanta. Just like that, your answers are safe with me. It's never leaking out, ठीक है. Only you, I, and the government who are surveilling on us knows this, ठीक है, no one else. All right. With that, our presentation comes to an end. Thank you so much. And आज अच्छा लगा कि I was in the last 5-10 minutes I became a listener, so I was able to make out कि कितना अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ रहा है, और आप लोगों ने मुझे भी समझाया वापस से. और हाँ, बाय द वे, दिशा जी ने हमको बहुत एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है बीच बीच में, जैसे कि जो बेटे हैं पांडु के, उन लोगों को देवता का आशीर्वाद मिला. ये हम लोग अगले सेशन में अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है, कैसे एक्चुअली अर्जुन was blessed by Indra's boon, ठीक है, to Kunti. That's how Arjun came. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है. So you don't need to worry about that. We'll not miss out on anything. Before I end the session, before I take the screenshot, one thing I want to ask you all. I have been बहुत सारे लोगों ने अलग अलग ओकेशंस पे मुझसे कहा है कि दिस टाइमिंग को थोड़ा चेंज करना चाहिए, ठीक है. एंड अगर आपको याद हो, 3 हफ्ते पहले मैंने सबको इंडिविजुअली एक मैसेज भेजा था कि इफ यू वांट द टाइम्स टू चेंज 9 to 10 और समथिंग लाइक दैट, यू कैन लेट मी नो. और बहुत लोगों ने मुझे मना किया था नॉट टू चेंज, इसलिए आई डिड नॉट. आई हैव नो प्रॉब्लम टू टेक योर सेशंस एट एनी डे ऑफ द वीक, एट एनी टाइम ऑफ द वीक, ठीक है. आई जस्ट केयर अबाउट योर कन्वीनियंस, कि मेजॉरिटी को जो टाइम कन्वीनियंस लगता है वहीं पे करो. एंड बिफोर आई स्टार्टेड टेकिंग द सेशंस, दिस वाज द टाइम 10 to 11 सिंस लाइक ऑलमोस्ट 1 year, ठीक है. But then again, it's not my concern. I can take it anytime. It's about your convenience. वो मेरे लिए मैटर करता है. तो आज जब आप फॉर्म भरेंगे, लास्ट में जो क्वेश्चन होगा योर एक्सपेक्टेशंस, उसमें आप लोग अपना प्रेफरेबल डे, अपना प्रेफरेबल टाइम बताइए, ठीक है, जिसमें आपको ऐसा लगता है करना हो. और अगर हमारा मेजोरिटी में कुछ और आ रहा है, आई विल श्योरली डू दैट, ठीक है. ऑल्सो सम पीपल हैव टोल्ड मी, कुछ लोगों का सुबह संडे का फर्स्ट हाफ जो है फिक्स्ड होता है, कोई स्पेसिफिक क्लास या कुछ प्रोफेशनल कोर्स को लेकर. सो वो चाहते या तो आई विल डू ऑन संडे इवनिंग, या फिर उससे भी बेटर है सैटरडे इवनिंग या सैटरडे मॉर्निंग, ठीक है. ये तो श्योर है कि सैटरडे या संडे में से कोई एक दिन होगा. अब सुबह करना है, शाम को करना है, किस दिन करना है, आई लीव इट टोटली अप टू यू. सो प्लीज मेंशन दैट इन द फॉर्म टुडे. ऑलराइट, दैट्स इट. अगर जरूरत पड़ा, मे बी विल स्टार्ट वन सेपरेट बैच, अगर जरूरत पड़ा, ठीक है. सो विल सी अबाउट दैट आफ्टर आई सी योर रेस्पॉन्सेस. दिशा शर्मा, अंशवी जी, कान्हा जी, तनिषा, अक्षया, ईशानवी, शिवी, वरुण, यश, आयशा, इप्शिता, खुशी, चेतना, कृति कश्यप, पूर्वी, आयुष, सुहाना, सौम्या, श्रुति डोकानिया एंड नमीशा जी. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम. आई रिक्वेस्ट आप वीडियोस ऑन कर लीजिए, हम लोग स्क्रीनशॉट लेके सेशन को खत्म करते हैं. हो गया. 3, 2, 1. हरे कृष्णा. थैंक यू सो मच, ठीक है. बाय द वे, आउट ऑफ आफ्टर द 10 सेशंस आपका फिर से क्विज होगा, ठीक है ना. इस बार आई होप कि नए लोगों को गिफ्ट्स मिले, ठीक है. पुराने वालों को गिफ्ट्स मिल चुके हैं, पहले 5 विनर्स को. सो प्लीज इस बार ट्राई कीजिएगा. आज का सेशन समझ गए ना तो हो गया, बाकी सारा 5 क्लास पे आप ठीक हो, ठीक है. बस नेक्स्ट संडेज का 5 जो होगा उस पर ध्यान दीजिएगा. बाय बाय, टेक केयर, हरे कृष्णा. थैंक यू. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्णा.